हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ये वाला चैप्टर भी हम 2 बार में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी है चैप्टर ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. One such trip took them to river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip they travelled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from the trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach, dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, some were humid, and yet all of them had many organisms of various kinds. तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम यही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग्स क्या है, क्लाइमेट अलग अलग जगह पे किस किस तरह के क्लाइमेट्स होते हैं और उन जगहों पे किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं. दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर्स. Bujo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here. पर ऐसा होता नहीं है. छोटे छोटे organisms आपको हर जगह मिलेंगे. Ants, cockroaches and many more. ठीक है. But he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have any living creatures. ठीक है, तो कोई ऐसा प्लेस उनको मिला नहीं जहाँ पे लिविंग क्रीचर्स ना हो. Paheli started thinking and reading about far places. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. तो हर जगह आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे. Even the extreme of environments, organisms and the surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Buju was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. The deserts and had camels. Deserts में camel मिलते हैं. The mountains had goats and yak. Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a varieties of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. ठीक है, तो हर जगह पे प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. What about the surroundings in these different regions? Were they the same? नहीं, सराउंडिंग्स अलग थी, तभी डिफरेंस आया ऑर्गेनिजम्स में भी और ट्रीज में भी. लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट. थिंक ऑफ अब 2 to 1 स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है कि लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट. थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर. लिस्ट देम इन कॉलम 1 of table 9.1. List things, animals and plants found in other regions that are also shown in table. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table. तो क्या है table 1? Animals, plants and other objects found in different surroundings. फॉरेस्ट में कौन से एनिमल, प्लांट और अदर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको. माउंटेन्स पे कौन से मिलेंगे, इन द डेजर्ट, इन द सी या किसी और जगह पे. तो ये थ्रू आउट दिस चैप्टर अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो तब भी आपको सबके एग्जांपल्स मिल जाएंगे. जैसे कि डेजर्ट की बात करें तो अभी इसने एग्जांपल बताया था. डेजर्ट में कौन सा एनिमल मिलता है, कैमल. वहाँ पे प्लांट्स किस तरह के होते हैं, थॉर्नी बुश टाइप प्लांट्स होते हैं, कैक्टस हो गया.
ठीक है। तो और इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। Try and include many plants, animals and objects. Begin small in each column in this table. What kind of object we will find that may not be animals or plants? Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं plants और animals के अलावा। तो we may also find different kinds of soils and pebbles, ठीक है। rocks मिल सकती हैं, soil किस तरह की है वहाँ पे, pebbles. Water in the oceans may have salts dissolved in it, as discussed in chapter 5. There could be many more objects. As we go through the chapter, keep adding more examples to this table. तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको कंप्लीट करते जाइएगा टेबल को। हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, तो अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दोनों। हैबिटेट क्या है और अडेप्टेशन क्या होती है। तो लेमन टर्म्स में मैं आपको बता देती हूँ कि हैबिटेट मीन्स जो सराउंडिंग्स हैं हमारे, उसको एक तरह से हैबिटेट बोला जाता है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, दैट इज़ आवर हैबिटेट। और अडेप्टेशन मीन्स उस जगह पे रहने के लिए हमने अपने बॉडी में या अपनी किसी भी चीज़ में क्या चेंजेस लाए हैं ताकि हम वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं उस जगह पे, उसको अडेप्टेशंस बोलते हैं। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety of them? Look at what you have entered in column for the forest and in the sea. Did you list very different kind of organisms in the two? Forest में आप किस तरह के organism plants हमको लॉन्ग ट्रीज मिलेंगे, जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, और नीम हो गया, इस तरह सॉल्ट ट्रीज हो गए। सी में किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं? सी में तो आपको सीवीड टाइप और इस तरह के प्लांट मिलेंगे। एनिमल्स सी में फिश हो गए, क्रैब्स हो गए। फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स, मंकीज़, ठीक है, लायन, ये चीज़ें फॉरेस्ट में मिलेंगी। तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन्स? इनमें सराउंडिंग्स किस तरह की हैं? इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, और पानी के अंदर जो एयर डिजॉल्व होती है उसी को यूज़ करते हैं ये। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. और डेजर्ट में पानी बहुत कम अवेलेबल है और दिन में बहुत गर्म होता है वहाँ पे, टेम्परेचर रात को बहुत ठंडा हो जाता है. Animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kind of animals and plants in these two regions. Let us look at two very different kind of organisms from desert and sea, a camel and a fish. Desert में मिलता है camel और sea में आपको fish मिलती है. तो बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस. तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कैमल का, विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स. अब देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कैमल की लॉन्ग लेग्स क्यों है? वाई कैमल हैज़ लॉन्ग लीव्स? टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ताकि वो जो सैंड की हीट है उससे दूर रहे उसकी बॉडी, इसलिए इट हैज़ लॉन्ग लेग्स. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. तो ये सारी एडेप्टेशन है कैमल की, इम्पॉर्टेंट है. अगर सवाल आता है कि व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन कैमल, तो ये यहाँ से आपने उठाना है. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. यूरिन उनका बहुत कम आता है क्योंकि भाई वहाँ पानी बहुत कम है, तो यूरिन की क्वांटिटी बहुत कम वो रिलीज़ करते हैं. और डंग ड्राई होती है एंड स्वेटिंग भी उनमें नहीं होती. सिंस कैमल्स लूज़ वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, तो ये इन सब से क्या होता है, वाटर जो उनकी बॉडी में कम लूज़ हो पाता है. दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. तो क्योंकि वो पानी बहुत कम लूज़ करते हैं तो उन्हें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, कई दिन तक वो सर्वाइव कर जाते हैं बिना पानी के. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. सम ऑफ दीज आर शोन इन 9.3 फिगर.
तो 9.3 में आपको फ़िशेस दिखाई हुई हैं। तो फ़िश बहुत तरह की होती हैं भाई, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, साइज उनका कलर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई व्हेल है, कोई आपके गोल्ड फिश है, ठीक है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिश। ऑल ऑफ द शोन हेयर हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, उनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, लेकिन दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। इससे क्या होता है, दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, पानी के अंदर उसके मूवमेंट में हेल्प करती है ये शेप। फिश हैव slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. तो स्केल्स क्या करते हैं, these scales protect the fish। अब ये भी इसके अडेप्टेशन से सारी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Scales help in easy movement through the water. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balance in water. तो fins और tail का क्या function है, they help them to change directions and keep their body balance in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water, ठीक है। तो सब हर चीज़ के फंक्शन दे दिए, फिन्स टेल के क्या फंक्शन है, फिन्स के क्या फंक्शन है, और उनके गिल्स के क्या फंक्शन है, ठीक है। We see that the features of fish help it to live inside water and the features of the camel help it to survive in a desert. We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in surroundings in which they are normally found. The presence of specific features or certain habits which enable a plant or animal to live in its surroundings is called adaptation.